अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस की तरक्याती हिकमत अमली पर बीआरएस की तनकीद, समाराव मोहन रेड्डी का सख्त बयान। तेलंगाना पुलिस ने बीआरएस के सदर तारक रामाराव के खिलाफ ड्रोन के गैर मजाज इस्तेमाल का मुकदमा किया दर्ज। किसान तंजीमों का वफ्द राहुल गांधी से मुलाकात, एमएसपी और कर्ज से निजात की मसाइल पर की बातचीत। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग की सरगोशियां बढ़ रही है। ईरान ने हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। अब खबरें तफसील से। पीसीसी मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन समाराव मोहन रेड्डी ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती कोशिशों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने बेरोज़गारी और तरक्की के मसाइल के हल के लिए तेज़ फैसले कर रही है, जबकि बीआरएस और बीजेपी ने पिछले 10 सालों में रियासत में सरमायाकारी लाने के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया है। समाराव मोहन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अमरीकी दौरे को सरमायाकारी के हुसूल में अहम कदम करार देते हुए सवाल किया है कि क्या साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कभी ऐसी जिम्मेदारी कबूल की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत के करोड़ों रुपए धोखाधड़ी के ज़रिए हथिया लिए हैं और रियासत को कर्जों के बोझ तले दबा दिया है। अब जब कांग्रेस हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है कि रियासत को कर्जों की बोझ से निकाला जाए और तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, बीआरएस लीडरान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। समाराव मोहन रेड्डी ने ये भी सवाल उठाया कि क्या केसीआर कभी रियासत में सरमायाकारी हासिल करने के लिए ऐसा कोई टूर प्रोग्राम तरतीब दिया था। దానికి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలతో సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ గిట్ట నువ్వు పెట్టకపోతే నీకు రేపు పొద్దున దాని శాంక్టిటీ ఏముంటది? కాబట్టి సమయం పడుతుంది. ఇబ్బంది ఎందుకుంది? మనకు 5 సంవత్సరాలు అధికారంలోకి ఇచ్చారు. ప్రజల సమస్యలను మనం పరిష్కారం చేస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటిది మనకు లెక్క. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు కలెక్టరేట్ ఆఫీసులకు వచ్చి గతంలో అసలు సమస్యలకు పరిష్కారం ఎత్తుకునే పరిస్థితి ఉండేనా? ధరణిలా కనీసం పోతే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉండేనా? లేదు. కానీ ఈ రోజు ఏమైంది? ప్రజా దర్వాజాలు ఓపెన్ అయినాయి, కలెక్టరేట్ల కాడ ఓపెన్ అయినాయి, ఎమ్మెల్యే ఇళ్ల కాడ ఓపెన్ అయినాయి, స్థానిక నాయకుల దగ్గర ఓపెన్ అయినాయి. ఎవరికైనా కూడా సమస్య వస్తే పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. సమస్యల పరిష్కారం ఒక లెక్క, గతంలో జరిగినటువంటి అవకతవకలని రిపోర్ట్ రూపకంలో ఇవ్వటం ఇంకొక లెక్క చూడాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. కాగ్నిజెంట్ బోగస్ కంపెనీయా ఏమో మరి బోగస్ గా ఉండి బోగస్ జీవితాలు గిట్ట ఉండేటోళ్ళకి, గతంలో బోగస్ కంపెనీలకు తెచ్చేటోళ్ళకి అట్లా గిట్ట ఏమైనా కనిపిస్తుండొచ్చు. కానీ మరి మాకైతే కాగ్నిజెంట్ పెద్ద కంపెనీ, ఒక ఎంఎన్సి. కాగ్నిజెంట్ సొల్యూషన్స్ పెద్ద కంపెనీ, చిన్నది ఎందుకైతే సిటిఎస్ కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంపెనీ. అది దాని ఎక్స్పాన్షన్ మనం ఒప్పించినాము. ఇది వెల్కమ్ చేయాల్సింది. ఒక్కటే నేను ఇందాక అన్నా కదా, పాపం ఈర్ష్యతోటి జీర్ణించుకోలేక ఉపశంతో బాధపడుతున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లుంది అని అంటే, బయటికి రాలేకుండా సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే కూతలు కూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. బయటికి వచ్చేందుకు మాట్లాడు, పొద్దున్న లేస్తే అబద్ధాలే. మీరు అబద్ధాలతో ఉంటాయి కదా, ఆధారాలు పెట్టి కేసులు అవుతున్నాయి మీ మీద. దయచేసి మీ బుద్ధి మార్చుకోండి అంటున్నాము. మీరు గతంలో బోగస్ కంపెనీలను తీసుకొచ్చారు, ఏవి చూపెట్టారు అంటే లేవు కదా. మరి మేము ఈరోజు రియల్ గా మనం గతంలో కూడా స్కిల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి జరిగింది. కేంద్రంకి సంబంధించి కూడా ఒక ఏదైనా ఉంది కదా, ఒకటి కేంద్రంకి సంబంధించిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించింది ఉంది కదా ప్రోగ్రామ్. మరి 10 ఏళ్ల సంది ఎవరికి స్కిల్ ఇచ్చారు, 7 కొలువులు ఇచ్చారు చూపెట్టమన్నారు. కేటీఆర్ ఎందుకు ఇట్లాంటి ఆలోచన చేయలేకపోయాడు? నైపుణ్య సామర్థ్యం పెంపొందించేటటువంటి దాన్ని ఈరోజు ఎందుకు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయారు? వాళ్ళు చేయలేనటువంటి పని మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి, అరే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా? గతంలో అన్నది ఏంటన్నా, ఏం చేయలేరు వీళ్ళు. అమలు కాని హామీలు అన్నారు, గ్యారెంటీలు అన్నారు, అసలు రుణమాఫీలు జరగవని అన్నారు. ఎట్లా సాధ్యమైతాయి? అసాధ్యమైనటువంటి గాలికి ఏదో మాట్లాడతారు, వాళ్ళు వచ్చేది సచ్చేది లేదన్నారు. ఈరోజు అన్ని సాధ్యమవుతున్నాయా లేదా ఒకటి తర్వాత ఒకటి? దయచేసి ఏంటంటే సహేతుకమైనటువంటి ఆరోపణలు ఏమైనా చేస్తే జవాబు మనం చెప్తాం, లేదు అంటే ప్రజలే వాళ్ళకి చెప్తాం. तेलंगाना मेडीगड्डा बैरेज के करीब ड्रोन की गैर मजाज परवाज की शिकायत के बाद पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और दीगर कायदीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 26 जुलाई को पेश आने वाले वाक़े में केटीआर और उनके साथियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगैर इजाज़त ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया। महादेवपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ड्रोन फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया है।
तेलंगाना के बुदन शहर में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया है, जिसमें कांग्रेस के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसलर राधा कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा लड़की जो अपनी मां की दवाई लेने निज़ामाबाद जा रही थी को काउंसलर ने बस स्टैंड पर ऑटो से उतारकर अपने कार में बैठाया और उसे करनापल्ली गांव ले गया। वहां नौजवानों ने काउंसलर को लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर बुदन में शदीद गम व गुस्सा फैल गया और मकामी लोगों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करके मुलज़िम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुलज़िम को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। मजलिस टाउन सदर मुशीर बाबा और नुमाइंदा काउंसलर समीर सैम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शदीद बरहमी का इज़हार किया है। बड़े आदमी की बात सुन रहे थे, बड़े आदमी को पुलिस धक्का दे रही है। भाई हमको कॉपरेट कर रहे थे, हम पीसफुल रखे, उनको पुलिस धक्का दे रही है। हमारे सामने धक्का नहीं पड़ी। माफी मांग रहा हूं, हमारी बात गलती मियां मैं बोल रहा हूँ पूरी पुलिस की है। पुलिस उसकी बेल को ऑब्जेक्शन नहीं डाली, अपोज नहीं करी, उन्हें 1 वीक में बाहर आया। पुलिस की गलती है पूरी। दूसरी और क्या भाई टी-शर्ट वाले उनका फैमिली का मामू का मैं आऊं पोस्ट में बेल होता क्या आप बोलो, आपकी गलती आप लोग ये कर रहे। आप पहले भी छोड़े, इससे पहले भी छोड़े आप। नहीं उनको पहले भी छोड़े, इससे पहले भी छोड़े, बोलो ना भाई, इससे पहले भी छोड़े आप। पुलिस की अंदर चलो। हुकूमत में बीआरएस हुकूमत में इनके भाई भी ऐसी हरकत करे थे, इनो भी थे उसमें मुलविस। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी ये बंदा, ये हैवान, इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत किए थे। उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा, वो पोस्को एक्ट भी है। अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे, माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेज़ी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम एसीपी साहब को बात करें। एसीपी साहब हमारे को और यहाँ के लोकल जो भी सीआई साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे, क्या इनके भी साथ वैसी होंगे? नहीं, इंशाल्लाह एसीपी साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते। और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा एसीपी साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल के। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते हैं। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के एसीपी साहब ये हमको वादा करे। हम इंशाल्लाह एसीपी साहब को वादे के ऊपर हम लोग अब यहाँ से जा रहे और वो एसीपी साहब के हम शुक्रगुजार है कि हमको कोऑपरेट करें और उसके ऊपर एफआईआर करें।
किसान तंजीमों के 11 रुकनी वफ़द ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से पार्लियामेंट हाउस में वाक़ उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों के MSP की कानूनी ज़मानत और कर्ज़ों से निजात जैसे अहम मसाइल पर हुकूमत पर दबाव डालने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द ने अपने मुतालबात की तौसीक करते हुए मुल्क भर के किसानों को दरपेश मुश्किलात को भी राहुल गांधी के सामने रखा। इस मुलाकात में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश भी मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस और इत्यादि जमातों ने हेल्थ इंश्योरेंस पर भी GST में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। Point out is that you can't really impose GST on something as essential as life insurance. The government has announced a policy of life insurance for all and health insurance for all by 2047, and now they're taxing in such a way that there will be no possibility of being able to do that. एक प्रपोजल हमने दी है कि अपने जो आपके जो मेंबर्स हैं कुछ उनका एक ग्रुप बना दें कोई 5-7 लोगों का, सो दैट आगे जरूरी नहीं कि राहुल जी से बात हो, पार्लियामेंट मेंबर्स हों जो कंसर्न हो एग्रीकल्चर के बारे में और एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि राहुल जी ने शुरू में ही ये बात कही थी कि MSP मिलने के बाद भी एग्रेरियन क्राइसिस पूरा रिजॉल्व नहीं होगा, कर्जा मुक्ति के साथ भी पूरा रिजॉल्व नहीं होगा, इसलिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि एक ऐसा ग्रुप बना दीजिए पार्लियामेंट मेंबर्स का आप अपनी गाइडेंस में, जो रेगुलरली जिससे हम मिलकर डिस्कशन करते हैं। आश्वासन दिया है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल वो उन्होंने कहा डेफिनेटली लेके आएंगे, हर हालत में लेके आएंगे। क्योंकि आप लोगों ने तमाम बातें रखी, किसानों का कर्ज की बात है, बीमा बिल है, कोई ऐसी मांग उसमें जिस पर राहुल जी ने कहा कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि अब हमारे मैनिफेस्टो में भी ये है और ये आपने जो दिया ड्राफ्ट बिल हमें बना के हम इसी को पेश करेंगे। सर सवाल इसलिए इससे आगे हमने एक बात ये रखी कि भाई जितनी देर तक CACP की टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बदलती, ये स्वामीनाथन कमीशन भी बोलो, कोई कुछ बोलो, A2+FL भी बोलो, तब भी किसानों का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं CACP पे। उसको कहा गया है कि अगर जब आप दाम तय करोगे तो इस बात का ख्याल रखना, उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बढ़े, इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बुरा असर ना हो, डिमांड सप्लाई का ध्यान रखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना है, इंटरनेशनल प्राइस का ध्यान, ये सारे काम सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसान की नहीं। वो तो खेत में काम करता है। हमने कहा इसे कमर्शियल एक्टिविटी मानो, जब अगर वो कमर्शियल एक्टिव मानते हो तो जितना उसका खर्च है वो मिला के उसमें 50% प्रॉफिट होता है ताकि वो सर्वाइव। इन सब बातों पर उनसे चर्चा हुई। हमने 2020-21 में 2 प्राइवेट बिल संसद में पेश करवाए थे। एक था कर्ज मुक्ति का बिल और दूसरा था MSP को लागू करने का। ये दोनों हमने उनको पेश किया है कि आप फिर से क्यों ना इसको संसद में अपनी पूरी ताकत से उठाएं। उन्होंने इसको समझा, जयराम नरेश उनके साथ थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट सेशन में वो इन दोनों बिलों को संसद में लाएंगे और संसद के भीतर वो पूरी ताकत से किसानों की आवाज है इसको सुनेंगे। हमने ये भी एक बात उनसे कहा कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं या जितने भी नेता हैं, उन्होंने किसान के भरोसे को तोड़ा है। आपने चुनाव से पहले भी गारंटियां आपने भी मोदी के साथ बांटी हैं। किसानों के साथ ये अविश्वास नहीं होना चाहिए, किसानों का जो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। किसान हर हालत में लड़ेंगे और अपनी जीत लेंगे, लेकिन उसमें आपका संसद के अंदर सहयोग का जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया हमको। हाँ, ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस तरह का किसान जो मैदान में लड़ रहे हैं और हमारे साथ जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव वो हमारे साथ है, उनका भी 4 काला जो कोड है उसके खिलाफ है। तो हम दोनों कोऑर्डिनेशन में भी और आने वाले समय में नवंबर महीना में प्रोबेबली। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या को तीर्थ स्थल करार देते हुए कहा है कि यहाँ किसी अकीदतमंद को परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। कमिश्नरेट ऑडिटोरियम में जिला के तरक्याती कामों और नज़्म व नस्क की जायज़ा मीटिंग के दौरान योगी ने अयोध्या को भगवान राम की नगरी करार दिया और इसकी तरक्की के लिए बीजेपी की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को मुल्क का सबसे बेहतरीन सियासी मकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। यह बयान हालिया इंतखाबी नताइज के पश मंज़र सामने आया है, जहां अयोध्या के पार्लियामानी हलके से बीजेपी का उम्मीदवार शिकस्त खा गया था।
तालीमी इदारों में हिजाब या बुर्का पर पाबंदी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को ऐलान किया कि उसने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों को फहरिस्त बंद करने का हुक्म दिया है, जिसका मतलब है कि जल्दी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मुमकिन है। मराठा कॉलेज अहाते में हिजाब व बुर्का पर पाबंदी के फैसले की हिमायत की थी। अदालत ने कहा था कि हिजाब और बुर्का पर पाबंदी तालिबात की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है और ये ड्रेस कोड तालीमी इदारों के नज़्म व नस्क़ की बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आलमी इदारे सेहत ने HVP के जरासीम के ख़तरे के बारे में 16 ममालिक को अलर्ट जारी किया है। हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है। आलमी इदारे सेहत WHO ने HVP के नाम की एक नए मुहलिक जरासीम के बारे में अलर्ट जारी किया है, जो सेहतमंद अफराद में भी मुहलिक इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये जरासीम अस्पतालों और आम आबादी दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर फैल सकता है। WHO ने 127 मुल्कों में 43 ममालिक से इत्तलात हासिल करने के बाद यह अलर्ट जारी किया है। इन 43 ममालिक में से 16 ममालिक में HVP के जरासीम के केस की तस्दीक की गई है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। बांग्लादेश में जारी तशद्दुद और वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा और मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क के उनके करीबी अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज़ हो गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। यह कार्रवाई मुल्क में बढ़ती हुई सियासी अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में की गई है। बांग्लादेश में जारी सियासी हलचल के बाद उबूरी हुकूमत कायम करने का फैसला किया गया है। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को इस उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया है। ये फैसला मुल्क के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ज़ेर सदारत में होने वाली मीटिंग में किया गया है। एहतजाजी तलबा ने मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत की सरबराही की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। मीटिंग में रिजर्वेशन तहरीक की क़यादत करने वाले तलबा रहनुमाओं और तीनों फ़ौजियों के सरबराहान भी मौजूद थे। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में तेज़ी आ गई है और जंग की सरगोशियाँ अब खुली धमकियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटी में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है और ईरानी फ़ौज बैलिस्टिक मिसाइलों की तरसील में तेज़ी दिखा रही है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला करने वाला है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पेंटागन ने इसराइल को अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि ईरान 2000 मिसाइलों से हमला कर सकता है, जो किसी भी वक्त मुमकिन है। इसराइल ने फौरी तौर पर शुमाली इलाकों के बाशिंदों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत दी है और खुली जगहों पर न जाने का मशवरा भी दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिनसे हालात की संगीनी में मज़ीद इजाफा हो गया है। ईरानी फ़ौज की तैयारियों से वाज़ेह हो रहा है कि अगले 48 घंटे इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इसराइल पर 20 राउंड मिसाइलों की बारिश करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। कांग्रेस की तरक्याती हिकमत अमली पर BRS की तनकीद, समाराव मोहन रेड्डी का सख्त बयान। तेलंगाना पुलिस ने BRS के सदर तारक रामाराव के खिलाफ ड्रोन के गैर मजाज इस्तेमाल का मुकदमा किया दर्ज। किसान तंजीमों का वफ्द राहुल गांधी से मुलाकात, MSP और कर्ज से निजात की मसाइल पर की बातचीत। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की सरगोशियाँ बढ़ रही है। ईरान ने हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।